Hello dear children, good morning. You are most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of financial statement, and yes, today we have to study the preparing the trading and profit and loss account given, whether the information given the trial balance. We have to bifurcate all the expenses related to trading account and related to profit and loss account and other items for the balance sheet. Now see the question number 14, practical question number 14, that is given in your book, your textbook. Question number 14. The information given of the trial balance and from the trial balance we have to prepare the financial statement, income statement, profit and loss account, trading account and balance sheet as the particular date. Go through the question that is given, information given. I will read the question and I will, with the explanation, this expenses related to which account, that is trading account or profit and loss account. Now see question number 14. First draw the format of question number 14. Format of trading account. Now you can see the column of trading account. Column of trading account, just covering the videos here. In middle we can write this way. Trading account for the year ending, whatever the information given, trading account, particular amount, particular amount. This one is debit column and this one is the credit column. As you know, in trading account, opening stock, purchase return and all the direct expenses which are involved in the production of goods or bringing the goods to the godown, these expenses are direct expenses. मेरे कहने का मतलब ये है, जो माल बनाने का खर्च होता है और जो माल को गोदाम तक लाने का खर्च, इस हेड के अनुसार पहचानेंगे। जो नाम दिया रहेगा एक्सपेंस का, तो आपको लगेगा कि ये माल हमने मंगाया है उसका खर्च है कि माल बनाया है उसका खर्च है। रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस which is recorded in the profit and loss account. See how these are the expenses recorded. Question number 14 given. First, stock. This one is the stock in trial balance, opening stock. So you can write over here in trading account. This one is the item of trading account to opening stock. Opening stock. साल के प्रारंभ की रहतिया जो होती है स्टॉक, द गुड्स आर रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट विल बिकम द बिगनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज द ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का बचा हुआ माल यदि बिका नहीं है और आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया है, तो अगले साल वो ओपनिंग स्टॉक हो जाता है 10,000. यू कैन राइट ओवर हियर 10,000. Next, purchase, to purchase.
परचेज आपने यहां रिकॉर्ड किया, जो सामान आपने खरीदा। आप ये ध्यान देंगे कि परचेज रिटर्न क्रेडिट कॉलम में रहता है, तो क्रेडिट कॉलम में रिटर्न आउटवर्ड्स करके लिखा हुआ है। तो परचेज को पहले इन साइड में लिखेंगे, कितना है 58,000, 58,000 लेस परचेज रिटर्न। देखेंगे आप क्रेडिट कॉलम में दिया है परचेज रिटर्न, ये है आपका 2,600 माइनस 2,600। अब हमारा एक्चुअल परचेज हो गया। अब हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट के अमाउंट वाले कॉलम में दर्शाएंगे। 004 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, 55,400 हमारा परचेज हो गया। 58,000 माइनस 2,600, तो ये हमारा परचेज हो गया बेटा। अब देखें वेजेस मजदूरी मीन्स दिस एक्सपेंसेज दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेज। हमने मजदूरी जब दिया तो इसका मतलब है कि हम माल को गोदाम तक ला रहे हैं या माल बना रहे हैं। टू वेजेस, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसे डालेंगे। सबसे पहले आप सीखने की कोशिश करें। 4,700। अब आइए रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स का मतलब हो गया माल वापस आया, तो इसका मतलब हमने बेचा हुआ है, तो बेचा हुआ माल वो सेल्स रिटर्न है, वो सेल से माइनस होगा क्रेडिट कॉलम में। कैरेज ऑन परचेज, यहां तो सीधा सीधा ये कहा जा रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस है कि हमने माल के खरीद पर ढुलाई दिया, तो टू कैरेज ऑन परचेज, टू कैरेज ऑन परचेज, टू कैरेज ऑन परचेज आपका 2,360। अब आइए कैरेज ऑन सेल्स, तो ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है। ऑफिस सैलरीज, ये भी आपका सेलिंग एक्सपेंस है। रेंट एंड टैक्स, ये भी। कैश हमारा एसेट्स है, बैलेंस शीट का आइटम है। बैंक बैलेंस, ये भी हमारा एसेट्स है, बैलेंस शीट का आइटम है। बैड डेट्स, पैसा डूब गया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है। डिस्काउंट अलाउंट, हमने छूट दिया माल बेचने पर, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। मतलब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में माल बनाने और मंगाने का ही खर्च डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचेंगे हम उसकी लागत क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी एसेट्स है। स्कूटर एसेट्स है, स्कूटर रिपेयर खर्चा है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बिल्स रिसीवेबल, ये भी एसेट्स है। कमीशन, ये भी। सन्डी डेटर्स, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, ड्राइंग, ये सारा आइटम हमारा कोई भी माल मंगाने और बनाने का खर्च नहीं है। अब आइए क्रेडिट कॉलम में, तो लास्ट में देखेंगे यदि आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो आप इसमें डालेंगे, वो आउटसाइड दिया रहता है ट्रायल बैलेंस के, हमेशा आउटसाइड। यदि ट्रायल बैलेंस के इनसाइड में अगर क्लोजिंग स्टॉक दे देता है तो इसका मतलब एडजस्टेड है, तब उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ना दिखा करके सीधे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब यहां पर सेल्स देखिए दिया है ना, बाई सेल्स हमारी बिक्री कुल कितने साल भर की हुई। सेल्स दिया है 98,650, 98,650 लेस सेल्स रिटर्न, ये डेबिट में मिलेगा आपको, जिसे कहा गया रिटर्न इनवर्ड, लेस रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न को ही आप कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है।
कितना दिया है रिटर्न इनवर्ड 3520 माइनस 3520। अब आप सेल्स हमारी एक्चुअल सेल हो गई 0, 5 minus 2 is equal to 3, 6 minus 5 is equal to 1, 8 minus 3 is equal to 5, 95,130 रुपीज। अब नीचे देखें ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड में अगर जो दिया होगा द स्टॉक ऑन 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक 2020 22,000, सो यू कैन रिकॉर्ड बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान हमारा बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहां पर लिख दिया आपने 22,000। अब बेटा क्या करेंगे, हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब कोई आइटम ऐसा नहीं रह गया है जो आपका उससे संबंधित हो ट्रेडिंग अकाउंट से। अब इसे टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे तो हमें ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस पता लगेगा। अब देखिए 130, 5 to 7, 1,70,130, 1,70,130 आपने यहां पर टोटल लिख दिया। अब जो डिफरेंस अमाउंट होगा ये टोटल करेंगे 10,000, 55 10 65 4, 65 4 69 और 2 71, 71,000 ये हो गया। 7 4 11 3 14, 1460 रुपए। 69,000 में 1460 और जोड़ देंगे, 71,000 में 1460 और जोड़ देंगे, 1460 जोड़ दिया आपने। 0 6 4 1 1 2 7। अब इसे हम 1,17,130 से माइनस करें। 1,17,130 से माइनस किया हमने 72,460। 0 13 minus 6 is equal to 7, 10 minus 4 is equal to 6, 6 minus 2 is equal to 4, 11 minus 7 is equal to 4, 44,670, 44,670, that is the gross profit to ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सीड कर रहा है। आप देखें सीडी ग्रॉस प्रॉफिट आपका आंसर हो गया। अब हम खाका बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आप यहां पर ऐसे कर दें, देखें फिर कॉलम बना दिया हमने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इधर ध्यान दें जरा सा, हम कैमरा सही कर दें। हाँ, अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से बच गए हैं बेटा
उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेज ले जाएंगे, केवल एसेट्स और लायबिलिटी को छोड़ करके एक्सपेंसेज और इनकम। अब देखिए क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ें, परचेज, स्टॉक, वेजेज, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज ऑन परचेज, ये सारा कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज ऑन सेल्स, तो लिखेंगे टू कैरेज ऑन सेल्स, टू कैरेज ऑन सेल्स। सबसे पहला काम ये होता है 710 रुपीज। सबसे पहला काम ये होता है, यदि प्रॉफिट है जीपी तो हमारा इधर प्रॉफिट मतलब इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो आप लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट से वो क्या है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आप ट्रांसफर कर दिए। कितना आया है 44,670, 44,670 ये आपने कैलकुलेट किया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हमारा शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि कितना हुआ। ये तो आपने सकल लाभ और सकल हानि पता किया। अब टू कैरेज ऑन सेल्स, उसके बाद है ऑफिस सैलरीज, कैरेज ऑन सेल्स के बाद टू ऑफिस सैलरीज, टू ऑफिस सैलरी कितना है 4,800। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, टू क्वेश्चन देखते जाइएगा, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस आपका है 2,400। उसके बाद कैश है, कैश जो होता है आपका एसेट्स होता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। बैंक बैलेंस, बैंक में रुपया जमा है, दिस वन इज द आइटम ऑफ बैलेंस शीट, दिस वन इज द एसेट्स। बैंक डेट्स, बैंक डेट्स मतलब जो डेटर पर हमारा पैसा डूब गया तो हमारा नुकसान है, नुकसान हमेशा जो होता है डेबिट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैंक डेट्स। बैंक डेट्स का मतलब जो पैसा आपने उधार सामान बेचा था, आपका तो लेकर भाग गया, वो 600 डूब गया, मतलब वो अनरिकवरेबल है, वो आपको मिलेगा नहीं, बैड डेट्स। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड, छूट देंगे माल बेचने पर तो भी खर्च है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो यहां पर लिख दिया टू डिस्काउंट अलाउड। डेबिट का जो डेबिट में है डेबिट में लिख देंगे। देखो कितना आसान है, डिस्काउंट अलाउड कितना है आपका 640 रुपए। अब ये जितने एक्सपेंसेस है सब एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनको कहा जाता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करके हम इसे क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता करते हैं कि पूरे साल के दौरान हमें शुद्ध इनकम, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि कितनी हुई। डिस्काउंट अलाउड 640। लैंड एंड बिल्डिंग, दिस वन इज द एसेट, सो इन बैलेंस शीट। स्कूटर, ये भी स्कूटर एक अचल संपत्ति है जो फ्यूचर बेनिफिट देती है, इसलिए एसेट्स हुई हमारी। स्कूटर की रिपेयरिंग, तो टू स्कूटर रिपेयरिंग, स्कूटर आपने बिजनेस में स्कूटर रखा हुआ है जिससे आप बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, तो उस पर जो खर्च हुआ है स्कूटर रिपेयरिंग पर 850 रुपए आप इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ये भी हमारा एसेट्स है, भविष्य में पैसा मिलेगा। कमीशन आपने दिया तो टू कमीशन, टू कमीशन
टू कमीशन। कमीशन हो गया आपका 1800। माल बेचा, किसी को कमीशन दिया भाई। सन्ड्री डेटर्स, ये भी आपका क्या होता है? डेटर्स जिनसे भविष्य, जिनको आपने उधार सामान बेचा हुआ है उनसे भविष्य में पैसा लेना है, तो डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होता है। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन, आपने किसी एक्स व्यक्ति से कर्ज लिया है, उस पर आपने ब्याज दिया हुआ है, तो वो ब्याज करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका हो गया टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन 1500। 1500। अब आप देखेंगे ड्राइंग है, ड्राइंग निजी खर्च कहा जाता है, तो इससे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि उससे पूंजी कम हो जाती है, तो बैलेंस शीट में इसे कैपिटल से डिडक्ट कर दिया जाता है। ये हो गया डेबिट कॉलम का। अब आइए हम आपको क्रेडिट कॉलम में चलते हैं। देखिए इनकम कोई है, हाँ, डिस्काउंट रिसीव। आप माल जब खरीदे हैं तो छूट पाए हुए हैं, तो ये क्या होगा? बाय डिस्काउंट रिसीव, ये इनकम हुआ हमारा। तो इनकम को हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं। कितना हो गया? 750 रुपए। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड कर चुके हैं, सेल्स कर चुके हैं, बिल्स पेबल जिसका भुगतान हमें भविष्य में देना है, तो वो चीजें आप क्या करते हैं? लायबिलिटी होती है, हमारा कर्ज है। सन्ड्री क्रेडिटर, वो भी कर्ज है। क्रेडिटर्स फॉर रेंट, क्रेडिटर्स फॉर रेंट, रेंट के क्रेडिटर हैं, ये भी हमारे क्रेडिटर हैं, किराए के लिए क्रेडिटर हैं। कैपिटल 40,000, लोन फ्रॉम एक्स, कमीशन 1200, हमने कमीशन प्राप्त किया है, ठीक है। इनकम हो गया बाय कमीशन, बाय कमीशन। आपने कितना प्राप्त किया है? 1200, 1200। अब बेटा आप बना सकते हैं क्या? अब नेट प्रॉफिट आप पता कर लेंगे। इधर का टोटल कर लीजिए, 0, 7, 5, 12, 2,